then Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and let's start our. Let me share the screen first. Okay, here we are. So we gonna celebrate a little bit of that. Whatever we had done. Let me see. I forgot myself. Career run. Where is that? That's here. So we started our animation practice. It's actually practice for animation. Nothing, something serious. And mind you, you should do with me. And secondly, it is as per the screen. Okay, I'm not making it responsive at all, and I'm not working on that way. I'm just concentrating on explaining animations and giving that practice, and you should work according to your screen. Now we have here what I see here. We had done something. Is my screen visible? Yes, Oh, sir. yes, sir. Yes, sir. So we said we have here the main text which is saying Happy New Year, and then we've got the year text which is having 202. Then it is in the div which holds all these things. There are three spans and one div for the balloon, and one span for 202, then 3 and 4. So 2023 and 2024. Okay, then we have to style them up. So when we style them, it is happy.css. Okay, rest I will close because वो उसमें क्या था, animation का क्या किया था हमने. I will keep only two guys here. Okay, now happy.css. We said firstly box sizing a border box and just formatting our stuff. Then we put up the linear gradient, then main text which is having that Happy New Year. It is absolute so that it can go anywhere we want. So width is 100%, so it takes up the full width. And I said text align is center and font size is 150. So text align is center, and so that text will come in the center. Font size, font weight, top is 50%, so top is down, so we're getting it down. That's main text. Opacity is 0, it's not visible right now, but it is visible because it's come from the animation. So initially it won't be visible because opacity is 0, because we don't want it to, it's actually like this. It's not visible, it comes later on, it comes and goes up. In fact, it shouldn't be visible right now because when there is a 2023, it's not anywhere, so it shouldn't be. It should wait till the 4 comes from this side into 3. Okay, so we'll make him wait. So we will make him wait for say 12 seconds. We will see how many seconds later. Let me write now 12 seconds wait, and for this guy also 12 seconds wait. Okay, so that it won't come early. It will come later when the 4 has come from the side and replace it with the 3. And after that, when all these things happen, then this guy should kick up, because now it's getting the delay of 12 seconds. Now after 12 seconds, now Happy New Year is coming, right? Okay, because I told you this is the delay. This is how much time it will take to come up. And this, if I get it 2 seconds for example, then maybe it will take some little time. Okay, maybe here let us make it 10 seconds for a while. So after 10 seconds it will come up, and it will take 2 second time to get from the position to the final position, the transition. We understood all those things, right? Now it's the year text. Year text is width is 100%, height is 100%. So I'm taking up the whole space, so I'm getting the whole space here, right? For the year text, that is these guys, because year text is my um, the outer div, right? The year text is this guy, the outer div, in which we have all these spans. Okay, and also the balloon. So that year text is hogging the whole space. That means सारा space ले रहा है, width और height सारा ले रहा है, ठीक है? Okay. Now display is flex. So display is flex, so it can move anywhere. Flex direction is row. We should do it because in the mobile phone it is column. So justify content and align atom center. And then why we need the padding? Huh? One second. Why we need the padding then? If it is justified, flex direction is row, justify content center and align atom center. So it should सर, come into क्योंकि center. ये वो सेंटर नहीं कर रहा था इसको, इसीलिए हमने पैडिंग लगाई थी. अच्छा, ये सेंटर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको हैप्पी न्यू ईयर शायद नीचे आ रहा है. अगर इसका हम बॉर्डर देखेंगे पहले, एक मिनट, इसका ये जो ईयर टेक्स्ट है
इसका बॉर्डर देखिए, मैं देखूंगा ये कहाँ पर है, अभी आ रहा है बॉर्डर, क्योंकि ये सारा स्क्रीन ले नहीं रहा ना। बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, हाँ ये हाइट फुल नहीं ले रहा, क्योंकि इसको ये न्यू ईयर बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं ले रहा है स्पेस। सो इसको उठाना पड़ेगा ना, उसको, इसको फिर क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर नहीं चाहिए मेरे को, इसको उठाना पड़ेगा। आई शुड से पोजिशन एब्सोल्यूट, इफ़ आई से पोजिशन एब्सोल्यूट, नाउ ये उठेगा ना अपने ऊपर से, तो ये किसी भी न्यू ईयर के ऊपर से जाएगा। हाँ लेकिन इसमें दूसरा पंगा हो जाएगा, अब जो ये पूरा बैठ गया ना स्क्रीन के ऊपर, तो इसने वो जो लीनियर ग्रेडियंट आपका किया था वो ख़त्म हो गया, इसलिए हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, बल्कि पैडिंग से ही काम लेंगे। ठीक है, हम पैडिंग करेंगे इसकी। ठीक है, पैडिंग ओपन करूँगा मैं इसकी 300 पिक्सल बाय, सो इसमें आगे फिर 3 को भी हमने पैडिंग दी होगी उतनी, मगर मैं और करूँगा इसको 500 पिक्सल रखते हैं। ठीक है, सो दैट इट गोज़ डाउन, ताकि नीचे आ जाएगा ये स्क्रीन के नीचे। ठीक है, ओके। अब 3 के ऊपर भी काम करेंगे अभी। तो फिलहाल हमारी ईयर टेक्स्ट में पैडिंग हो गई 500 पिक्सल्स की और 100 पिक्सल्स की मैंने इसको किया, और बाकी 0 0। सो whenever there is 4 things, so this is top, this is right, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज हमने कहा था, this is right top, this is then right, this is bottom and this is the left। सो इसको 500 पिक्सल्स मैंने दिए, तो टॉप दिया तो ये नीचे चला गया। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो है मेरा डॉट ईयर टेक्स्ट में स्पैन मतलब क्या है कि सारे, यानी कि ये सारी चीज़ें, ये सारे स्पैन जो इस ईयर टेक्स्ट के अंदर सारे स्पैन है, इनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट वेट है और कलर है, तो सबका ही होगा। ठीक है ना, बस में आ रही है। अब इसमें जो 3 है, 3 हमारा ये बंदा है। ठीक है, ये 3 जो है, अब इसके ऊपर काम करना है। इसका मैं टॉप क्यों रखूँगा, टॉप मत रखो, क्योंकि ये एब्सोल्यूट जब आ जाएगा और ऊपर से उसका आ जाएगा तो खुद ही आ जाएगा लाइन में। राइट इसका 38% है, वो देखना पड़ेगा ठीक है कि नहीं। हाँ, तो टॉप मुझे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसी के साथ आ जाएगा ना जो ये बंदा है, क्योंकि ये जो हमने पैडिंग कर दी, ये पैडिंग किसकी की हमने, ये की ईयर टेक्स्ट में। ईयर टेक्स्ट कौन है, ईयर टेक्स्ट अपर डिव है। ठीक है, वो पैडिंग सब पे लग जाएगी। ठीक है ना, तो यानी कि उसका मतलब है कि जितना पैडिंग इस पे लगेगी उतनी ही 3 पे भी लगेगी, उतनी 4 पे भी लगेगी, तो उसको टॉप बताने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आई। तो जो पैडिंग इस पे लगी वही इस पे भी लगेगी, तो 3 पे भी वही पैडिंग लगेगी, यानी कि उसका टॉप खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और एनिमेशन, अब इसमें हम कर रहे हैं कि इसको एनिमेशन करो। इसको कितने सेकेंड्स वो देखना पड़ेगा अभी, 4 सेकंड 5 सेकंड में क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा अभी, ये ऐसा क्यों किया हमने, ये हालांकि हम इसमें चेंज करेंगे थोड़ी सी। और 4, अब 4 कहाँ है, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, और राइट हमने 85% रखा है। यानी कि अगर मैं राइट इसका देखो, पहले जो 4 है वो यहाँ पे आ गया, 4 बीच में, मैं चाहता हूँ कि ये 4 इस स्क्रीन के बाहर जाए। ठीक है, और फिर ये यहाँ से होके आके 4 की इस 3 के ऊपर बैठे और 3 ऊपर उड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कहा -85%। जिनको जो एब्सेंट थे उनके लिए मैं बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको कहेंगे -65%। आप देखो ये कहाँ पे चला गया, ये 4 चला गया यहाँ पे 65। अब और राइट साइड चलाना है इसको। ठीक है, आप देखो 55 रखता हूँ मैं, 1 मिनट देखें, ये 4 यहाँ पर है, दिख रहा है ना साइड में, तो उसको और चलाने के लिए हमने 85 कर दिया, ताकि वो भागे, स्क्रीन के बाहर है 4। अब इसको वहाँ से लाना है, लेकिन पहले बैलून भी हम बनाएंगे। ठीक है ना, और इसकी एनिमेशन में 6 सेकेंड्स फिलहाल हमने कहे हैं, हम इसको देखेंगे कितना रखेंगे इसको। ये हो गया स्पैन 4। अब बैलून जो मेरा है, बैलून कौन है मेरा, वो डिव है ना, ये बैलून जो है ये डिव है, इसको बनाना हम शुरू करेंगे। सो व्हाट शुड बी द बैलून, आई शुड से डॉट बैलून। हाँ जी, इसका बैलून का क्या आ जाएगा, कोई बताएगा, क्योंकि मुझे इसको गोल बनाना है, इसका कलर येलो करना है, और इसकी पहले हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए कुछ, तो मैं इसकी विड्थ दूंगा से फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, और इसकी हाइट दूंगा मैं 100 पिक्सल। 100 पिक्सल की हमने दिया। और बताओ, बैकग्राउंड कलर देंगे येलो, कुछ बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर एरिया बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर रेडियस करेंगे, क्योंकि फिलहाल मैंने येलो दिया, यहाँ पे आ गया ये येलो,
देखो ये चकोर आ गया, मगर वो चकोर नहीं चाहिए मेरे को कैसा चाहिए? बॉर्डर रेडियस क्या कहूँगा मैं इसको? बॉर्डर रेडियस 50%। 50% बोलने से तो इसका गोल बन जाएगा ना ये, और इसका टॉप ऊपर होना चाहिए, बैलून का टॉप ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसको टॉप हम देंगे फॉर एग्जांपल 20%। देखता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या कहाँ पे आ जाएगा। 20% इसका टॉप दूंगा मैं। इसका टॉप क्यों नहीं लगा? 20% अगर मैंने दिया इसका टॉप, तो ये तो लगना चाहिए टॉप 20% या 30%। नहीं, 20% में तो ये ऊपर जाना चाहिए था ना, ये तो गया ही नहीं। इसको क्यों नहीं हुआ है? कंट्रोल एस, कमांड एस। बॉर्डर रेडियस हमने दिया 50%। उसके बाद बैलून का मैं पहले बॉर्डर रेडियस लग गया है ना, इसका टॉप क्यों नहीं लग रहा बैलून का? क्यों? अच्छा, मगर इसका टॉप इसलिए लग रहा नहीं है क्योंकि पैडिंग ऊपर से आई है ना, जो पैडिंग आई है उसने इसको यहाँ बिठाया है, और ये जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर चीज़ें हैं। तो इसको हटाना पड़ेगा, इस अपने लेआउट से ऊपर उठाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले? हाँ, शाबाश। उसका, हाँ, इसकी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, तब जाके तो उठेगा ना। एब्सोल्युटली, पोजीशन एब्सोल्यूट जब तक नहीं करोगे तब तक कहाँ ये चलेगा? पोजीशन एब्सोल्यूट, ये मत भाग जाएगा तब तक। जैसे वो नहीं जा रहा था ना नीचे, जैसे आपका ये जो ये बीच में नहीं जा रहा था क्योंकि चीज़ें थी। अब जब पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, देखो इसके ऊपर चढ़ गया, ये 2023 के ऊपर चढ़ गया। अब ये कहीं भी घूम सकता है। तो अब अगर मैं इसको कहूँगा टॉप, इसका टॉप आप कर लो 20%, तो जनाब ये चला जाएगा 20% पे, है ना? थोड़ा सा नीचे करते हैं, टेक्स्ट के नीचे करेंगे इसको, 30% रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? आ गया 30% पे। लेकिन अब इसको जो बैलून है ये उस 4 के ऊपर आना, जहाँ 4 है ना स्क्रीन के बाहर, ये उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये बैलून ही 4 को लाएगा अपने साथ। ये बैलून जो है वो 4 को लाएगा, क्योंकि बैलून उड़ के लाएगा 4 को, ठीक है? तो बैलून की जो यहाँ पे राइट इसका है, वही राइट इसका भी होना चाहिए, बैलून का भी। RIGHT राइट -85 पिक्सल्स। तो अब बैलून जो है वो गया, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ओवर करूँगा। थोड़ा दिख रहा है, 90 पिक्सल करूँगा ताकि बैलून बाहर जाए, ठीक है? अब मानो गया बैलून बाहर और 4 भी बाहर है। अब बैलून और 4 को आना है आहिस्ता आहिस्ता 3 के पास, ठीक है? फिलहाल बैलून जो है उसकी भी अपनी एनिमेशन होगी, जो वो लाएगा एनिमेशन उसकी होगी। उसका नाम रखूँगा बैलून ही में, और बोलो क्या कितने सेकंड्स में चलेगा वो देखना पड़ेगा। उसका क्या हिसाब किताब करेंगे हम, पहले मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इसका हिसाब किताब हम यहाँ करेंगे। इसमें कहाँ गया है, क्यों नहीं ओपन हो रहा है? अरे यार, ये वाला ओपन हो जा। देखो यहाँ समझने की बात है। लुक एट दैट, दिस इज़ माई स्क्रीन। 4 बैठा है यहाँ और बैलून बैठा है यहाँ। इसको एक ट्रायंगल देना है यहाँ पे, और एक रस्सी देनी है अभी, ठीक है? वो देंगे। पहले टाइमिंग सीखते हैं, फिर इसका रस्सी और ये ट्रायंगल नॉट ना, इसका ऐसे जो नॉट आएगा, ये ट्रायंगल एक जो लगेगा कि बैलून है, और एक रस्सी देनी है इसको। ये भी सीखेंगे कि कैसे देंगे हम ये 2 चीज़ें। और ये 4 यहाँ पर है और ये बैलून यहाँ पर है, ठीक है? अब ये जो बैलून है, ये इसको इस डायरेक्शन में आना है, इसको भी इस डायरेक्शन में आना है। यहाँ आपका बैठा है 2023। अब जो आपका ये 4 है, ये यहाँ से आएगा और यहाँ पे इसको रुकना है। पहले ये टाइम इसको देंगे हम, ताकि यहाँ पे इसको रुकना है। क्यों? क्योंकि जब बैलून इसके साथ आएगा यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ 4 रुकेगा, ताकि बैलून अब जाएगा इसके पास, और यहाँ हम एक प्लेट रखेंगे जो कि ऊपर उठेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, ताकि लगेगा कि 3 के साथ अब अटैच हो रहा है ये बैलून, ठीक है? अब जब 4 यहाँ पे आएगा, वहाँ पे ये स्टॉप मारेगा। 4 को यहाँ पे स्टॉप करना है, सो दैट बैलून गोज़ ऑन। लेकिन बैलून आगे जाएगा इसके पास, 3 के पास। अब इसके साथ अटैच होके अब बैलून 3 को उड़ा के ले जाएगा यहाँ से टॉप, यानी कि इनकी टॉप जो 3 है वो उड़ के जाएगा यहाँ से, और बैलून भी जाएगा। और अब 4 आएगा और 4 की जगह बैठेगा, इस 3 की जगह बैठेगा। अभी 4 आएगा और इस 3 की जगह बैठेगा, बन गया 2024। अब नीचे से आना चाहिए वो हैप्पी न्यू ईयर का टेक्स्ट, ठीक है? इसलिए मैंने उसको टाइम दिया 12 सेकंड का,
ताकि वो बाद में आए, जब ये सारी चीज़ें हों तब जाके वो आए। बलून जो हमारा मेरा है, इसको एक टाइम लगाना है यहाँ से यहाँ तक, और फिर टाइम देना है यहाँ से यहाँ तक जब ऊपर जाएगा। इसके पास कुल टाइम होगा, फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको फ़िलहाल 14 सेकंड्स लेता हूँ। मैं कहता हूँ बैलून का जो है 14 सेकंड्स है, उसमें इसका टाइम घुसेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 सेकंड्स हम देंगे इसको 4 को आने के लिए, तो उसका मतलब है बैलून को 10 सेकंड ऐसे गुजारने हैं और 4 सेकंड ऊपर, है ना। सो दैट मीन्स अगर मैं बैलून को, अगर मैं इसको देता हूँ 14 सेकंड्स बैलून को, किसको, ऐसे 14 सेकंड्स, उसमें उसका दोनों टाइम है। एक टाइम है जो 4 के साथ ट्रैवल करेगा, फिर 4 को रुकना है ताकि बैलून आगे जाए 3 के पास, फिर बैलून को आगे ऊपर जाना है अब, तो उसका कुल टाइम एनिमेशन का 14 सेकंड है। सो ऐसे ईज इन एंड आउट ये हम कर चुके हैं, जिसको मिस हुआ है वो देखेगा, एंड फॉरवर्ड्स। ओके, अब मैंने ये किया, इतना सारा ये इसका किया, लेकिन जो हमारा वो है कौन, जो हमारा 3 है, उसको अगर हमने 4 सेकंड्स दिए, लेकिन जब तक ये आता है, फ़र्ज़ कीजिए ये आता है 4 को कितना देंगे हम टाइम, 4 को आना है ना वहाँ से, कहाँ से, हाँ जी आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 को कहाँ से आना है, राइट वहाँ से फिर रुकना है जब तक 3 नहीं जाए। जब समझ में आ रही है, दिमाग में आ रहा है बात। 4 को रफ कॉपी हाथ में रखो और मुझे बताओ 4 को आना है कहाँ से, बाहर से, स्क्रीन के बाहर से आना है ना। वो 14 सेकंड्स हाँ। तो 10 सेकंड 10 सेकंड्स देंगे उसको, मानो ठीक है, उसको 10 सेकंड्स देंगे हम, ठीक। अगर हमने उसको 10 सेकंड्स दिए, ठीक है, ओके, उसके बाद ये जो वाला बंदा है, इसको, इसका टाइम जो है ना वो मानो 4 सेकंड्स है, इसका टाइम किसका, 3 का मानो है 4 सेकंड्स 3 का। तो अगर उसका 4 सेकंड है तो वेट कितना करना पड़ेगा उसको, ये मुझे बताओ आप, अगर आपको समझ में आ गया। वेट भी उसको 4 सेकंड नहीं, 5 सेकंड ना गोटा नहीं, इसको 4 वेट करना है जब तक कि वो बंदा ना आए, कौन, 10 सेकंड ना वहां से। एग्जैक्टली जब तक 4 ना आए, इनफैक्ट उससे थोड़ा कम, मानो 9 सेकंड में इसको वेट कराऊंगा, मैं इसको 9 सेकंड वेट कराऊंगा, और 14 सेकंड्स 4 सेकंड्स में देखेंगे हम, करेंगे थोड़ा सा इंक्रीज को, 6 सेकंड टाइम लगाएंगे इसको, फिलहाल 6 सेकंड रखूँगा मैं, 6 सेकंड इसका टोटल टाइम है, और 9 सेकंड जो है, क्योंकि बैलून आगे थोड़ा तेज़ चलना चाहिए इसलिए उसको थोड़ा कम देंगे, और 9 सेकंड्स इसका वेट टाइम है, यानी कि 9 सेकंड इंतज़ार करेगा और 6 सेकंड फिर ये अपना एनिमेशन लगाएगा जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें क्या कह रहा हूँ कि जो बैलून जो 3 है, 3 करेगा वेट फॉर हाउ मेनी सेकंड्स, आई सेड 9 सेकंड्स, और अपनी एनिमेशन कितने सेकंड्स लगाएगा, 6 सेकंड, वी विल सी, अगर ये फिट नहीं हुआ वी हैव टू चेंज इट, ठीक है। और जो बैलून है, बैलून को मैंने कहा कितने साइड कुल लगता है उसके साथ 14 सेकंड्स। 14 सेकंड अब 14 सेकंड में 10 सेकंड वो इसके साथ चलेगा ना, 10 सेकंड में मानो 8 सेकंड, 10 सेकंड में मानो 8 सेकंड यहाँ तक लगते हैं, मानो 8 सेकंड यहाँ तक लगे, 4 को 8 सेकंड लग गए यहाँ तक आने के लिए, या 7 सेकंड मानो, चलो हम मानेंगे 7 सेकंड इसको लग गए यहाँ तक आने में, 1 सेकंड यहाँ पे वेट करेगा, हो गए 8 सेकंड तक यहाँ बैठेगा, और फिर मानो 2 सेकंड यहाँ लग गए इस साइड में जाने में, ठीक है, यानी कि इरेजर 10 हाँ, क्योंकि 4 जो मेरा है इसका टोटल 10 सेकंड एनिमेशन है, रखा ना हमने पहले, जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो स्टॉप करेगा ये, वहाँ तक 7 सेकंड लगते हैं, कितने लगते हैं 7 सेकंड, और फिर 1 सेकंड ये वेट करेगा, तो हो गया 8 सेकंड, 4 उधर ही बैठेगा 1 सेकंड, और बैलून आगे जाएगा, और ये जो टाइम है ये 2 सेकंड का है टाइम, तो कुल हो गया 10 सेकंड्स, ठीक है। यानी कि 4 की जो एनिमेशन है उसमें एक स्टॉप यहाँ पे रखेंगे, फिर दूसरा स्टॉप रखेंगे, मानो जितनी परसेंट है 30% है, कितना है कि फॉर एग्जांपल अगर इसको 7 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 70% 10 सेकंड में से इसमें 7 सेकंड लगते हैं यहाँ पे, तो कितना परसेंट हो गया वो, सीधे ही हो गया 70%, है ना। सो 70% तक ये डिस्टेंस कवर करेगा, फिर उसके बाद जब इसका जब 80% होगा, क्योंकि 8 सेकंड होगा,
तब भी वही डिस्टेंस, मानो फॉर एग्जाम्पल 30% था, 30% ऑफ द जो ना इसका ये था, ये राइट, जो इसका राइट है उसका 30% फॉर एग्जांपल, तो 80 भी 80% पे भी 30% पे ही रहेगा, क्योंकि उधर ही रहेगा, स्टॉप करेगा। फिर जब इसका 100% होगा, फिर यहाँ 38% पे आ जाएगा, क्योंकि 38 हमने कैलकुलेट किया हुआ है परसों, है ना, क्योंकि हमने उसका रखा है ना 38। भैया नीचे चला गया, देखिए यहाँ पे हमने रखा है ना 38, इसको यहाँ पे राइट 38 पे बैठा है ना ये हमारा 3, सो 3 बैठा है कहाँ पे 38% पे, यानी कि 38% राइट, 38% राइट, यानी कि जो आपका 3 है वो 38% राइट पे बैठा हुआ है, यानी कि ये जो जहाँ पे 3 है, ये कहाँ गया ये है जो ये 3 है यहाँ, इसकी पोजीशन है 38% ऑफ द राइट, ठीक है। यानी कि मैं पहले करूँगा फिर आपको मैं समझाऊँगा हम क्या कर रहे हैं। आपका एनिमेशन जो बैलून का है 14 सेकंड का है, इसका 10, फिलहाल हम एनिमेशन शुरू करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। पहले हम एनिमेशन 4 की ही करेंगे, हमने लिखा है कहीं पे ना, तो अगर हमें एनिमेशन करनी है तो एनिमेशन किसकी बोल रहा हूँ मैं, 4 की, किसकी, 2024 टेक्स्ट, जिस तरह हमने टेक्स्ट ग्रेडियंट की, जिस तरह मेन टेक्स्ट की इसी तरह से हम एनिमेशन करेंगे 4 की। उसका नाम क्या रखा है हमने एनिमेशन का, year 2024 Year 2024. कमांड सी। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे एनिमेशन के लिए, At the rate of keyframe. शाबाश, एट द रेट ऑफ की फ्रेम, हाँ जो चीज़ हमने की उसमें भूलना नहीं है। और कमांड वी, ये ईयर 2024 है। इसमें हमारा जो, हाँ पहले 0%, 70%, 80%, 100%, है ना। पहले हमारा 0% होगा कि पहले इनिशियल स्टेज, फिर इसका 70%, जहाँ जब ये 70% पहुँचा, है ना, और फिर इसका 80%, 70% और 80% में ये सेम ही रहेगा, उसमें ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि वहाँ स्टॉप करेगा। तो जो 70% होगा वही 80% भी रखेंगे हम, ताकि ये वहाँ पे स्टॉप करे। जब उसकी पोजीशन हम सेम ही रखेंगे तो वही वहीं पे रुकेगा। फिर 100%, जब इसका ये 100% है किस चीज़ का, ये उस 10 सेकंड का 100% है ना। ये 0% टू 100% उस 10 सेकंड में हिस्से कर रहे हैं हम, ठीक है। जब 0% है उस वक्त क्या करना चाहिए, उस वक्त राइट उसका वही है जो है, वो कहाँ पे है, -85 पिक्सल पे, है ना। 94 नहीं 85 पिक्सल पे रखा था ना हमने इसको 4 को, ये है ना 85 पिक्सल का राइट, जो है वही रखा मैंने चेंज नहीं किया। जब 70% होगा उस वक्त मैं राइट इसका करूँगा 30%, कितना करूँगा 30% ऑफ वट एवर द राइट इज, जितना भी राइट है उसका 30%, और 80% के वक्त भी क्या करूँगा मैं, व्हाट शुड बी द राइट, इट शुड बी सेम। तो यानी कि 1 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड अगर 0 टू 100 मैंने कहा, 10 सेकंड के मैंने 0 टू 100 हिस्से किए, तो उसका मतलब हो गया ना कि 70% के ना 7 सेकंड थे तम हिसाब, ठीक है। 70% ऑफ 100, यू अंडरस्टैंड। अगर आप कहेंगे 70% ऑफ, जो 70% है ऑफ 10 सेकेंड्स, सो 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0, सो दैट इज 7 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स, जो 70% ऑफ 10, तो सीधी पता है। तो 7 सेकेंड में ये 30% राइट पे रहेगा, और 80% यानी कि 80% हो गया 8 सेकेंड, अब हो गया ना 8 सेकेंड पे भी 30% पे ही रहेगा। लेकिन जब 100% होगा उस वक्त ये कहाँ पे आ जाएगा 38%, जहाँ 3 बैठा है, क्योंकि हमने RIGHT हमने कहा है कि ये कहाँ गया ब्राउज़र, देखें ब्राउज़र पे हाइड इट, तो आ रहा है ना। देखो अब जब 7 सेकंड हो जाएंगे रुकेगा, रुक गया, ये 1 सेकंड रुकेगा, फिर चला, अब बैठा बराबर 4 के ऊपर जहाँ 3 है, बैठ गया ना, पास में आई। यही काम हमें बैलून को भी करना है, लेकिन बैलून में एक चीज़ है कि वो 4 तक चलेगा यहाँ तक, लेकिन वो रुकेगा नहीं, उसको आगे जाना है 38% तक, है ना। उसके बाद वो ऊपर को खींचेगा, नेक्स्ट टाइम उसको वो कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब बैलून की हम करेंगे पहले, बैलून के साथ काम। जो बैलून है मेरा, उसकी एनिमेशन 14 सेकंड की है, उसका नाम ही मैंने रखा बैलून, मैंने रखा बैलून एनिमेशन है, बैलून एनिमेशन रखेंगे नाम, ताकि प्रॉपर समझ आ जाए कि है क्या। कमांड सी, क्योंकि हो कंट्रोल कमांड सी बैलून। सो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, एट द रेट ऑफ, शाबाश, हाँ जी
keyframes. एट द रेट ऑफ की फ्रेम। हाँ बाकी सारे बोलो ना यार। और आइडेंटिफायर कौन है हमारा? इट्स लाइक ए मेथड कॉल। जिसको क्लासेस मिस हुए हैं वो देखिएगा वीडियो, वरना समझ नहीं आएगा। अब इसमें हमें क्या क्या लगेगा, पहले मैं ये कॉपी पेस्ट ही करूँगा यहाँ पे इसका, फिर इसको चेंज करेंगे कमांड C एंड कमांड V। अच्छा 0% जब इसका होगा उस वक्त इसका राइट 85 पिक्सल पे ही है ना? इनफैक्ट 90 पिक्सल पे है वो, है ना? लेट इट बी एट 85 पिक्सल। हम 85 पिक्सल को जंप मारेंगे, 85 पिक्सल पे आ जाएगा उस वक्त। ये 0 करेगा शुरू 85, हालांकि हमने उसका 90 रखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चले ना 4 के साथ, तो इसका मैं हालांकि 90 पे 100 क्यों ना हो, 200 क्यों ना हो, हम स्टार्ट करेंगे 85 पे। यानी कि अगर ये -200 पे भी है तो 0 टाइम पे वक्त ये खुद ही आ जाएगा 85 पे। आ गया जहाँ पे आपका ये था, जहाँ पे आपका 4 था वहीं पे आ जाएगा। अब मुझे कहना है कि भाई अब ये मसला है कि यहाँ तक, पहले हम यहाँ तक बात करेंगे, यहाँ तक जो है जहाँ जहाँ 4 चला, देखो 4 चला 7 सेकेंड्स, उसका 70% था, है ना? बात समझ आई? 7 सेकेंड्स तक 4 चला और बैलून भी इसी के साथ चलेगा 7 सेकेंड तक। जब ना इसका पहला स्टॉप है इस बंदे का 4 का, वहाँ तक तो बैलून चलेगा इसके साथ। लेकिन 7 सेकेंड जो है ये हमें बताने हैं फ्रॉम 14 सेकेंड्स, क्योंकि बैलून की एनिमेशन 14 सेकेंड की है। उसमें से 7 सेकेंड कितने % होता है? सिंपली 50% होता है, क्योंकि 7 14 का हाफ है, तो दैट मीन्स 50%। सीधी सी बात है ना? यानी कि बैलून का जो टाइम है दैट इज़ हाउ मच, 14 सेकेंड्स। उसका हाफ कितना होता है? 50% ऑफ 14। व्हाट इज 50% ऑफ 14? दैट इज़ 7। सो वही 7 सेकंड ही 4 तक चलेगा। तो इसमें हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आसान कर दिया इसीलिए मैंने इसको रखा था 10 उसको, ताकि वो सिंपल समझे। यानी कि यहाँ पे मुझे उसका 50%, यानी कि ये अपने टाइम का आउट, गो आउट, ये अपने जो 10 सेकेंड्स हैं उसका 70%, 7 सेकंड जो चला वो उसका 70% हो गया, जो उसका टाइम था 10। यहाँ पे जो ये है बैलून, उसका टाइम कितना है टोटल? उसका टाइम है 14 सेकेंड्स। अगर उसको 7 सेकंड चलना है तो 14% का कितना हो गया? 50% हो गया ना? तो मैं कहता हूँ कि भाई तू 30% राइट रख। तो अपना जो टाइम है आपको 14 सेकंड है, उसका 50% जो है, 50% ऑफ 14 सेकंड कितना होता है? 7 सेकंड। तो तू 30% राइट रखना। और इसने अपने जो टाइम, जो इसका टाइम था उसके हिसाब से 7 सेकंड आता है, उसका 70%, तो उसने भी कहा 30%। लेकिन 80% पे ये रुक गया, ये उसी जगह रहा, ये रहा उसी जगह जहाँ पे राइट था, उसने राइट वही रखा इन दोनों का, ठीक है? यानी कि 1 सेकंड ये रुका, लेकिन ये नहीं रुकेगा, इसको आगे जाना है। लेकिन अब इसको आगे जाना है किसके पास? 38% के पास, है ना? इसको जाना है आगे यहाँ पे 38% के पास। अब मसला है कि कितना टाइम आगे, कितना टाइम जाएगा, क्योंकि अब इसको 7 सेकंड में से 7 सेकंड बच गए। देखो अब बैलून को 7 सेकंड में से 7 सेकंड बच गए, लेकिन 7 में से पहले ये 2 सेकंड यहाँ से इसको यहाँ तक लगेंगे, 2 सेकंड, है ना? फिर 5 सेकंड ही जाएगा 3 के साथ, पहले 2 सेकंड ये तय करेगा यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है? उसके बाद क्योंकि 2 सेकंड लगते हैं ना, हमने रखे ना 2 सेकंड लगते हैं 4 को भी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने तक हमने कहा था 2 सेकंड लगाना, तो बैलून भी लगाएगा आपने 2 सेकंड यहाँ से यहाँ आने तक, ठीक है? तो अगर उसने 2 सेकंड लगाए, यानी कि 7 + 2 हाउ मच इज़ दैट, यानी कि 9 सेकंड लगेंगे उसको यहाँ तक आने के लिए। सो 9 सेकंड ये किसका? 14 सेकंड में से, है ना? सो दैट मैं आई एम सेइंग, सो वो कितना % होता है हमें वो देखना है। आप कैलकुलेटर निकालो, मुझे बताओ कि 9 सेकंड कितने % होता है 14 का। जैसे हमने कहा कि 7 सेकंड होता है 50% ऑफ 14 सेकंड्स, है ना? अभी दिखाया ना हमने, क्योंकि 14 जो है उसके अगर हम 50% का कहेंगे वो हो गया 7 सेकंड्स। अब मैं कहता हूँ 9 सेकंड जो है वो कितना होता है 14 का, यानी कि हम कहेंगे फर्स्ट की हम कहेंगे वो हो गया X%। सो वी सेइंग X ऑलमोस्ट 65%। हाँ एग्जैक्टली, X% ऑफ, कैसे करेंगे? X% ऑफ 14 इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स, इज इक्वल 9, ठीक है? दैट इज X डिवाइडेड बाई 100
into 14 is equal to 9. So that is 14x is equal to 900. So x will be 900 divided by 14. दे दो 900 divided by 14 को कितना होता है बताओ. सर वही 65 64.4 64 पॉइंट पूरा बताना वरना गड़बड़ हो जाएगा. 64.4. सो दैट मीन्स कि मैं इसको कहूँगा भाई साहब आप 64.4% जो है 64.4% जो आपका टाइम है आप 38 पे चले जाना. ठीक है. लेकिन उसके बाद जो 64.4% है उसके बाद इसको कहाँ जाना है, इसको ऊपर की तरफ जाना है. तो मैं इसको देखूंगा तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा टॉप की शुरुआत यहाँ से कि टॉप तेरा फ़र्ज़ कीजिए 30%. वो देखना पड़ेगा 30% था कि कितना था. हमने इसका टॉप कितना रखा था उस वक्त, इसका टॉप कितना रखा था हमने बैलून का 30% है ना. सो मैं कहूँगा शुरू करना टॉप 30% से और यहाँ राइट 38 ही रहेगा क्योंकि उसी पोजीशन पे रहेगा. लेकिन आपका टॉप जो है वो ऊपर जाएगा, यानी कि मैं कहूँगा इसको वो -100% कर लेना फॉर एग्जांपल, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाएगा. देखिए कहाँ गया ब्राउज़र. रिफ्रेश कर लेते हैं. अब देखें अब 4 आ रहा है, बैलून आ रहा है 4 के साथ. 4 रुकेगा, बैलून नहीं रुकेगा. बैलून आगे 2 सेकंड और लगेगा 3 के पास जाने के. अब जब गया उसके बाद वो ऊपर की तरफ जा रहा है. समझ में आ रही है. हैप्पी न्यू ईयर को थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा, इसको वेट करना पड़ेगा. अभी हैप्पी न्यू ईयर को और वेट कराना पड़ेगा हमें. जो न्यू ईयर है उसकी एनिमेशन कहाँ पर है, ये इसको 12 सेकंड क्यों, इसको हमें लगते हैं 10 सेकंड. हाँ 12 सेकंड इसको वेट करवाएंगे. ठीक है तब जाके ये आएगा. देखो हो क्या रहा है, 4 आ रहा है, ये 7 सेकंड लगा रहा है, यानी कि 50% इस बैलून के टाइम के हिसाब से 70% 4 के हिसाब से. ठीक है ना. अब फिर जब यहाँ गया उसके बाद ये ऊपर गया. अब यही 3 को करना है और 3 को उड़ा के ले जाएगा. ये कौन, 3 को उड़ा के ले जाएगा आपका बैलून. तो 3 की एनिमेशन जो है उसको देखेंगे, फिर हम टाइमिंग सेट करेंगे उसकी. ठीक है पहले ये समझ आ गया आपको ये चीज़ें, किसी को डाउट इसमें है मुझे बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई मसला नहीं. अच्छा कोई बताओ मुझे 3 के लिए क्या करेंगे. 3 के लिए तो बड़ा सिंपल एनिमेशन है. एट द रेट ऑफ, हाँ की फ्रेम्स का नाम क्या रखा था हमने, एनिमेशन का नाम क्या रखा था हमने 3 के लिए, ये रहा ईयर 2023. नहीं आ रहा समझ, सर आ रहा है समझ. जिसको नहीं आ रहा है वो बताएगा. कमांड भी कोई मसला नहीं, मैं फिर से बताऊंगा. अच्छा इसमें सिंपली है 0%. मुझे बताओ सारे क्या करेंगे. और 0% और 100% दो ही चीज़ें, या फ्रॉम टू भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. फ्रॉम टू लिखो, इसमें दो ही चीज़ें हैं. क्यों, क्योंकि इसको जब शुरू हो जाएगा मसला तो इसको क्या करना है. हाँ जी इसको भी उड़ना है ना उसके साथ. टॉप 0 पे अपनी जगह रहेगा, 100 पे फिर ऊपर पूरा जगह जाएगा -100. तो इसका टॉप जो होगा वो देखना पड़ेगा वो कहाँ पर है. फिलहाल हम रखेंगे 70% है. और फिर टॉप कहाँ जाएगा, -100% है ना. यानी कि अब टॉप छा ये वुचुन यह 70% उस लगो में अंदाज क्या ना वारिया बोन तेल त्रा वोट हिश अगर न बराबर द्रास त्रो ना यह गो थोड़ा बोन पहन रास सह गो असल यह बसान एनिमेशन अमिस लोग दक हिू यह वोत ना रास खंड बोन. यानी कि अस थोड़ा बहुत आखरस टॉप अम सुंद हेरू पहम. अब देखो बात समझ आई क्या हुआ. 4 जो आता है अपने 7 सेकंड लगाता है यहाँ तक आने के लिए, ये भी उस 7 सेकंड उसके साथ चलता है बलून, है ना. फिर बलून आगे जाता है और वो 3 को उड़ा के ले जाता है. वही 4 पकान थोड़ा तेज़ी पह यह पकन थोड़ा बे स्लो पहम रास खंड है ना. या पु हु पकन थोड़ा तेज़ पहम 3 तो बैलून, ताकि यह पकि तमिस तेज़ी पह 4 गसान हमिस ओवरलैप, यह गि ओवरलैप गसन कहें. समझ आई वहाँ दैट थिंग यू विल डू. यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो 4 आ रहा है पहले 3 निकलना चाहिए फिर 4 आना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए. ठीक है ये आ रहा है ना, यह 3 पे खसान, 3 गोड़े चोलमुत. ठीक है
कहाँ से समझिए वहाँ। सो हमने क्या कहा कि भाई साहब आप 6 सेकंड्स लगाओ किस में, क्या ये चीज़ क्या है बता मुझे, 3 का ये क्या मसला है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। 6 सेकंड है इसकी एनिमेशन, 9 सेकंड है वेट। ये 9 सेकंड वेट क्यों कर रहा है। जब तक वो 4 नहीं आएगा उधर। इसको अगर 10 सेकंड वेट करवाएंगे, क्योंकि 10 सेकंड लगते हैं ना 4 को आने में, है ना, क्योंकि 10 सेकंड लगते हैं 4 को आने में। असल में 9 सेकंड अब खुद ये मिस पेट ना मैं को कम मैं उसका मुझे कम करना था। 10 सेकंड आते हैं उसको, लेकिन किसने ओवर लावा थे मैं 9 सेकंड में क्या को हमको इस मोन चलो 28 सेकंड था उस तिल साइड ने एक बैलून ये ब्रोंट मसल ना ते बैलेंस को तो बैलेंस लगा 9 सेकंड ओतान वातनस मस हाँ ये चलना मैं बैलून ब्रो हुई तीन कारण क्या, क्योंकि जब तक बैलून नहीं आएगा तब तक नहीं करना है 9 सेकंड्स। मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे जो है ना 64% आपने गलत बताया मुझे यहाँ पे, क्योंकि 64% मुझे लगता है एक्स्ट्रा होता है इसको वहाँ पहुँचने में, इसीलिए ये लैग कर रहा है। 64% मुझे लगता है आपने गलत बताया। वो 900 डिवाइड में क्या उसका करना है तो उसमें कीमत हो गया ज़्यादा, कीमत हो गया ज़्यादा 64.4 64.2 सर 64.2 उस अलावा को मत हाँ अब आ रहा है ना ये। अब इसको हम तीन को थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट आप करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरा पक्का करना है कि हम इसमें रखेंगे 12 सेकंड इसका वेट करवाया हमने। मैंने कितना रखा था इसका, ये कौन है, ये मेन टेक्स्ट कमांड जी, इसको 12 सेकंड ही करना है। हमारा कौन है 3, इसको हम रखेंगे 8.6 सेकेंड्स, ताकि ये पहले ही उड़े, लेकिन ये सिंक्रोनाइज करना है बलून के साथ, क्योंकि बैलून से पहले नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। हाँ निकल रहा है, थोड़ी सी फ़र्क है अब, हाँ वो एडजस्टमेंट आप कर लेना इसकी, ठीक हो गया। लेकिन अब हमें बैलून की रस्सी भी बांधनी है और उसका नॉट बांधना है, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा ऐसे a.html, ठीक है। ये यहाँ पे एक चीज़ हम सीखेंगे, क्योंकि ये जो इसका नॉट यहाँ पे हम बनाएंगे, बलून का हम बनाएंगे नॉट यहाँ पे नीचे, ठीक है। वो हम या तो एक डिव लगाएंगे या हम एक नया एलिमेंट ही लगाएंगे, लेकिन हम अक्सर जो है ना वी यूज़ सूडो एलिमेंट्स, वी यूज़ व्हाट, इसका क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा जी सर वॉइस आ रही है डबल, ये किसी का होगा, ये माइक ऑन, किसी माइक तो ऑन नहीं है किसी की, अब हो गया ठीक। ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बैलून है हमारा, इसको हमें यहाँ पे नॉट करना है कि एक ट्रायंगल चाहिए मेरे को बस, और कुछ नहीं चाहिए, सेम कलर का, ठीक है। जो येलो कलर का रखा था उसी कलर का एक ट्रायंगल चाहिए। अब हम एक डिव रख सकते हैं, उसको बना सकते हैं वगैरह, लेकिन बेटर रहता है कि हम सूडो एलिमेंट इस्तेमाल करें बिफोर और आफ्टर, क्योंकि फिर इसकी क्योंकि इसको बैलून के साथ ही चलना है, बैलून चल रहा है तो इस बंदे को भी चलना है ना। सो अब अगर हम इसको अलग से बनाएंगे तो उसके लिए अलग एनिमेशन लगेगी, दैट इज़ नथिंग, that's very cumbersome, we shouldn't do that. So it should be part of the same element, so we should use the before or after pseudo elements so that it will be attached with them. But now how we make this triangle, let us learn that, how to make this triangle, बात समझ आ रही है। सो ये ट्रायंगल किसका पार्ट होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे, बैलून का पार्ट। चलो हम एक यहाँ पे बनाएंगे ये एक पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, डॉट बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैं एक डॉट बैलून बनाऊंगा, बैलून, ठीक है। ये डॉट बॉक्स और डॉट बैलून हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे जो है ना स्टाइल इसको अलग से नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे एक इनलाइन स्टाइल कर दूंगा इसका, ठीक, ओके। हाँ जी बात में आई।
So what should be the box? Let me make the firstly the box as a flex box. Okay, so I should style them using the dot box. Let me call it as display as flex. Let me call it display as flex. And let me, if I want to get in the center, what should I do? Align items, center, and justify content. Flex box भूल गए क्या? Justify content center. Okay, width इसकी देंगे हम 100% for example, full, और इसकी हाइट देंगे हम, जस्ट मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, कमांड एस। और जो इसका अब कौन बचा हमारा? बलून। अब मैं बलून देता हूँ, बड़ा सा बलून बनाऊंगा मैं, बलून। इसको विड्थ हम देंगे फ़िलहाल से फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पिक्सल्स, और हाइट भी देंगे हम 200 पिक्सल्स की। ठीक हो गया। और बैकग्राउंड कलर इसका येलो देंगे हम। ओके, और इसका बॉर्डर रेडियस बैलून बनाने के लिए 50%। ठीक हो गया। और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट देंगे हम, ताकि ये कहीं पे भी उठ के जा सके। और इसका टॉप हम रखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए 20%। ओके, और इसका लेफ़्ट क्यों रखूँगा मैं वो, अभी छोड़ो, एक मिनट, कमांड पहले देखेंगे कहाँ पे हैं। इसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे एंड लेट अस रन दिस, द सेम थिंग। नाउ इट्स कमिंग हियर समवेयर। इसका मैं टॉप करूँगा ये कमांड, ताकि ये बीच में आ जाए। लेफ़्ट 20%। ओके, हाँ, ये आ गया बलून मेरा यहाँ पे। अब मुझे इसको यहाँ पे नीचे बनाना है, कौन, एक नॉट। तो वो नॉट बनाने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा हमें। मैं कहूँगा इसको कि जो आपका बॉक्स है, जो ये बलून है, उसी के साथ, या जो मेरा बॉक्स है, या मेरा नहीं, बॉक्स नहीं, बैलून जो मेरा है, उसी का जो है B4 कर दो। उसी का क्या कर दो? B4, बलून का ही आप B4 कर दो। उसमें आप ये एलिमेंट लगा लो। लेकिन मसला क्या है, पहले सीखनी एक चीज़ है, वो चीज़ ये सीखनी है, आई डोंट नो व्हाई नीचे क्यों चला जाता है मुझे ये। इसको मैक्सिमाइज़ करो पहले। जो मेरा ये बलून है, यहाँ कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ मेरे पास एक डिव है, ठीक है, एक डिव मेरे पास है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट है नहीं। तो हम, जो हमारा बॉक्स मॉडल है, वो ये कहता है कि आपका एक बॉर्डर रहता है और आपकी फिर पैडिंग रहती है। ठीक है, कितनी पैडिंग आप करोगे, और किसके दरमियान पैडिंग है? बॉर्डर और इनर जो एलिमेंट है, असली जो स्पेस है, कंटेंट एरिया जिसे हम बोलते हैं, जो कंटेंट एरिया मेरा है, और बीच में पैडिंग बैठी है, और बीच में और फिर बॉर्डर है। ठीक है, अगर कंटेंट कुछ नहीं है, अगर कंटेंट कुछ नहीं, क्योंकि बॉर्डर जो आपका, मानो पैडिंग भी कुछ नहीं, अगर पैडिंग कुछ नहीं है तो आपका बॉर्डर ये है और कंटेंट एरिया भी यही है ना। तो रेड से बनाऊंगा मैं कंटेंट एरिया, वो भी वही है जो बॉर्डर के साथ ही है, कोई जगह खाली नहीं है। अब अगर मैं बॉर्डर थोड़ा सा मोटा दूंगा, मानो ये बॉर्डर है, मैंने बॉर्डर थोड़ा सा मोटा दे दिया, ठीक है, मैं बॉर्डर दे रहा हूँ मोटा, और ये कंटेंट एरिया बीच में है, क्योंकि पैडिंग कुछ नहीं है और बॉर्डर बहुत मोटा है। अब अगर मैं कंटेंट एरिया को छोटा करूँगा, ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर जो है, ये आपका बॉर्डर बनेगा। ठीक है, ये आपका बॉटम बॉर्डर बनेगा, ये आपका, ये देखिए, ये आपका टॉप बॉर्डर बन गया, ये आपका लेफ्ट बॉर्डर बन गया, ये आपका राइट बॉर्डर बन गया, और ये आपका बॉटम बॉर्डर बन गया। अब अगर कंटेंट एरिया 0 है, अब अगर कंटेंट एरिया है ही नहीं, कुछ कंटेंट है ही नहीं, एरिया ही नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, सो व्हाट विल हैपन, द बॉर्डर्स विल बी लाइक दिस, दिस विल बी योर टॉप बॉर्डर, दिस विल बी योर लेफ्ट बॉर्डर, एंड दिस विल बी योर राइट बॉर्डर, एंड दिस विल बी योर बॉटम बॉर्डर, है ना। तो ये बॉर्डर्स है। अब अगर इसमें मैं क्या काम करूं, जो ये वाला बंदा है, ठीक है, इसको मैं येलो कलर करूंगा, ये वाला जो बंदा है, जो ये कौन सा है, व्हाट इज दिस, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये क्या है, ये है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर, क्योंकि कंटेंट मैंने खत्म किया ना, जब कंटेंट है नहीं तो दे ट्राई टू मीट विद ईच अदर, द बॉर्डर्स मीट ईच अदर, यानी कि मैं बॉर्डर रख रहा हूँ लेकिन कंटेंट एरिया रख ही नहीं रहा हूँ। जब कंटेंट में रख नहीं रहा हूँ तो दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस एरिया विच इज़ 0, विच इज़ नथिंग।
So that is why borders are, you know, touching with each other. The top border is touching with the bottom border, और ये ऐसे आ गए ट्रायंगल शक्ल में बन गए, ठीक है. अब अगर मैं इसको हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, by making them transparent, what will happen? There will be only the bottom border left, ठीक है, जो कि ट्रायंगल शेप में आ जाएगा. सिंपल. सो अक्सर जब हमारी ट्रायंगल शेप्स होती हैं, कभी आपका ऐसे भी होता है ना कि आपने एक ये रेक्टेंगल दिया, फिर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाए, यानी कि ये मतलब बात इस बंदे की हो रही है, ये बंदा बात कर रहा है, ठीक है. तो ये ट्रायंगल्स वगैरह हम इसी तरीके से देते हैं. हम खाली डिव रखते हैं, उसके बॉर्डर्स ही ख़त्म करेंगे, टॉप लेफ्ट राइट, सिर्फ बॉटम बॉर्डर रखेंगे और कंटेंट एरिया 0 कर देंगे, ताकि ये जो है खाली मुझे एक ट्रायंगल दिखे, ठीक है. बात समझ आई. इसको विजुलाइज करने के लिए मुझे पहले वो नहीं करना था, मुझे असल में पहले यहाँ पे, अब मैंने दे दिया ये, मुझे ये नहीं करना था, पहले वो वही दिखाना था, ठीक है. यानी कि अगर मेरे पास एक यहाँ पे डिव है, ठीक है, मैं एक काम करूँगा, आई विल जस्ट कमेंट इट आउट फॉर अ वाइल. आई से हियर आई हैव ओनली वन डिव, ओके, दिस इज़ माई डिव. अब इस डिव को मैं स्टाइल में पकड़ूंगा, यहाँ पे मैं इस डिव को यहाँ पे स्टाइल में पकड़ता हूँ, ठीक है, सीधे कंटेंट डिव को. लेट मी कॉल इट, इसका क्लास देंगे हम माई बॉक्स. मैं इसका क्लास दूंगा ट्रायंगल, ना, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज, आई एम ट्राइंग टू मेक इट ट्रायंगल. अब इसे कंटेंट तो कुछ है नहीं. अब मैं इस ट्रायंगल को अगर पकड़ रहा हूँ तो आई शुड से डॉट ट्रायंगल, ठीक है, ओके. लेकिन कंटेंट के बगैर चीज़ नहीं होती कोई. इस जो कंटेंट एरिया नहीं है, हाँ चलो कंटेंट एरिया नहीं है तो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि भाई साहब कंटेंट जो मेरा है ना वो कुछ नहीं है, ऐसे, क्योंकि कंटेंट के बगैर बॉर्डर खड़ा करना इम्पॉसिबल. सो आई एम सेइंग माई कंटेंट इज़ व्हाट, 0. आई कुड से भाई मेरा जो विड्थ है ना वो 0 है, कुछ नहीं है. जो मेरी हाइट है ना वो भी 0 है. आई डोंट हैव हाइट और आई डोंट हैव विड्थ इन अ कंटेंट एरिया, एंड दैट इज़ एम्प्टी. सिंपल. सो आई हैव गॉट नथिंग. लेकिन जो मेरा बॉर्डर है, वो है. अब हम अलग अलग लिखेंगे फिलहाल. हमारा बॉर्डर जो स्टाइल उसका है वो सॉलिड है, ठीक है. जो बॉर्डर का स्टाइल हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ. बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है. अब जो बॉर्डर की विड्थ है, अब बॉर्डर की कौन कौन सा बॉर्डर होगा, टॉप होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट. टॉप फिलहाल मैं रखूँगा कुछ, मैं कहूँगा भाई मेरा टॉप जो है ना वो 10 पिक्सल का मेरा टॉप है, ज़्यादा देंगे, 100 पिक्सल का मेरा टॉप है, ठीक है. और टॉप के बाद क्या आता है, राइट में सारी दूंगा फिलहाल 100 पिक्सल के. फिर दूंगा मैं भाई जो मेरा टॉप राइट बॉटम भी 100 पिक्सल है, और लेफ़्ट भी 100, सारे मैंने 100 पिक्सल कर दिए, ठीक है. और बॉर्डर कलर मैं अलग से दूंगा, बॉर्डर कलर सबका अलग अलग कलर दूंगा मैं. बॉर्डर कलर मेरा जो टॉप है उसका रेड है, ग्रीन मेरा हो गया राइट, ठीक है. फिर बॉटम हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल येलो, जो मुझे येलो चाहिए बाद में. और उसके बाद जो चौथा है जो कि लेफ़्ट बॉर्डर है वो मानो है ब्लू, ठीक है. मैं इसको देख लेता हूँ ज़रा कैसा हो गया है. पहले कहाँ गया है ब्राउज़र, इसने भी तंग किया हमें, ये दिखा क्यों नहीं. डॉट ट्रायंगल मैंने कहा, हाँ ट्रायंगल स्पेलिंग, हाँ गलत स्पेलिंग है, TR यहाँ पे गलत है ना. आ गया, देखिए, क्योंकि कंटेंट जब आपका एरो 0, देखो ये बॉर्डर्स हैं, खाली ये बॉर्डर्स जो मैं भी समझा रहा था आपको, ये बॉर्डर्स हैं. बॉर्डर का कलर रेड, टॉप का रेड है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हम वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, है ना, वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. जब भी हमें बॉर्डर की बात करते हैं, किसी भी पैडिंग की बात करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप के बाद यहाँ से चलेंगे तो कौन सा आएगा, राइट. फिर यहाँ से चलेंगे क्या आएगा, बॉटम. फिर यहाँ से आएगा लेफ्ट. तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये ऐसे ही चलता है. ये टॉप आपका आ गया रेड, है ना, क्योंकि आपने रेड रखा था. अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने टॉप को रेड रखा था, फिर लेफ्ट राइट को ग्रीन, फिर बॉटम येलो एंड ब्लू. और आपका कंटेंट एरिया 0 है, ठीक है ना. विड्थ 0, हाइट 0, कुछ नहीं है, कंटेंट एरिया कुछ भी नहीं है, वो 0 आ गया. जब 0 आ गया बॉर्डर्स आपस में मिल रहे हैं, है ना. अगर कंटेंट एरिया 0 नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए कंटेंट एरिया की विड्थ 10 पिक्सल्स है,
इसकी हाइट 10 पिक्सल्स है, ओके। और मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए, इसको छोड़ें, ए मत लिखें, कहाँ गया ये। तो अब देखो ये बीच में जो कंटेंट एरिया है उसने ये 10 पिक्सल के हिसाब से फिर गड़बड़ की। लेकिन मैं जब मैं ज़ीरो रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ हाइट ज़ीरो, विड्थ ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं है, कंटेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर्स हैं उन्होंने अपने आप को पीक आउट कर दिया। टॉप बॉर्डर, बॉटम का जो बॉर्डर है वो टॉप के बॉटम बॉर्डर के साथ मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक चीज़ करूं कि मैं कहूँगा भाई साहब जो आपका टॉप जो बॉर्डर है ना, मैं इनको विड्थ नहीं दूंगा कुछ। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे मैं इसको दूंगा ज़ीरो, टॉप ज़ीरो, और जो मेरा टॉप के बाद कौन है, ये कौन सा है, टॉप के बाद क्या आता है, चलो जल्दी बताओ। राइट, राइट राइट बॉर्डर, ठीक है ना। अब राइट बॉर्डर अगर मैं वो भी ज़ीरो कर दूं, ठीक है, अगर मैंने उसको फ़िलहाल किया 10 पिक्सल्स, व्हाट विल हैपन। इसको किया मैंने 20 पिक्सल्स, और इसको मैंने किया 0 पिक्सल्स, ठीक है, व्हाट विल हैपन हियर, ओके। इट इज़ गोइंग दिस वे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो काम, आपने, अगर मैं ये भी ज़ीरो दूंगा, ठीक है, और लेट द बॉर्डर विड्थ ऑफ दिस गाई विल बी, जो ये है, ये कौन सा है, टॉप बॉटम 200 पिक्सल्स, और वो ज़ीरो कर दें आपने, व्हाट्स हैपनिंग। इसने क्यों नहीं दिखाया है, हम क्या, हमको थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। बॉर्डर विड्थ दे रहा हूँ मैं, किसकी, टॉप राइट, मैंने बॉर्डर विड्थ 0 रखा, ठीक है। टॉप का, बॉटम का भी मैंने टॉप के राइट भी 0 रखा, बॉटम मैंने 200 पिक्सल रखा, मैंने खाली रखा ना कौन, मैं खाली बॉटम रख रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल की बात हो रही है ना, हाँ इसकी बात हो रही है। तो 20 पिक्सल फिर 0 पिक्सल मैंने कर दिया इसका बॉटम, तो लेफ्ट हाँ लेफ्ट मैंने 0 कर दिया, तो बॉटम तो दिखना चाहिए ना हमें, यानी कि एक सेकंड, कमांड जी, मैंने 100 सारा कर दिया, ठीक है। मैं अगर ये करता हूँ 200 पिक्सल्स, ये 200 पिक्सल आ गया, लंबा हो गया ना ये वाला बॉर्डर। अब अगर मैं बाकी हटा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 0, आई एम सेइंग 0 and 0 and this is 0, so why is it not showing, so something is happening, मैं कहीं पे गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर विड्थ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि व्हाट आई वांट इज़ कि मुझे आ जाए कौन, बॉटम। मगर बॉटम अकेला वो किसके साथ मिलेगा वहाँ पे, ठीक ठीक। अगर मैं कहता हूँ 0 पिक्सल, से फॉर एग्जांपल 0 पिक्सल मैं कह रहा हूँ फ़िलहाल, मैं फिर कह रहा हूँ 100 पिक्सल मेरा ये है, 100 पिक्सल्स का ये है, 200 पिक्सल्स का ये है, और ये वाला जो मेरा है ये भी 100 पिक्सल्स का है, ओके। डिलीट, व्हाट विल हैपन हियर, यस, क्योंकि अगर आपका बॉटम बॉर्डर दोगे, लेकिन अगर आपने टॉप नहीं दिया तो वो तो भागेगा ना यहाँ से, वो यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आप बॉर्डर दे रहे हो, अगर आप बॉटम दे रहे हो 200 ठीक है, लेकिन उसको साइड तो होना चाहिए ना किसी के साथ जो मिलेगा वो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उनको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, वी विल मेक देम, व्हाट वी विल डू हियर इज़, इसमें जो कलर है ना, जो बैकग्राउंड कलर है, मैं दूंगा भाई ये वाला ट्रांसपेरेंट हो गया। पहले मैंने क्या काम किया कि, एक मिनट, कमांड सी, पहले मैंने क्या काम किया कि मैंने टॉप बॉर्डर हटा दिया खाली, देखिए अगर मैं इसको भी 100 रख रहा हूँ, ठीक है, ये टॉप बॉर्डर आ जाएगा, तो आएगा ना टॉप। जब मैं टॉप हटाऊंगा, ठीक है, तो ये जो बॉटम बॉर्डर है कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जब टॉप है ही नहीं, है ना।
तो इसका जो हिस्सा है वो इसके साथ मिलेगा, जो ये वाला हिस्सा है ये इसके साथ मिलेगा, ये वाला हिस्सा इसके साथ मिलेगा। अगर मैंने लेफ्ट एंड राइट भी हटा दिया फिर तो ये भी भागेगा ना, क्योंकि इसको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे काम, मैंने ये रखे इसको, लेकिन टॉप हटा दिया मैंने, टॉप मैंने हटा दिया। अब ये और ये बॉटम बॉर्डर है और राइट इसके साथ मिल रहा है और लेफ़्ट इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं राइट एंड लेफ़्ट को ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट, यानी कि मैं करूँगा काम यहाँ पे, मैं करूँगा ट्रांसपेरेंट। ये हो गया मेरा टॉप ट्रांसपेरेंट, वो तो रखने की है ही नहीं तो वो फिर भी मैं ट्रांसपेरेंट ही करूँगा। और जो मेरा फिर ये कौन सा है अब, राइट, ये हो गया। अब बॉटम है, बॉटम येलो, येलो, ठीक है। और उसके बाद जो वाला वो लेफ्ट है उसको भी क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट। लेकिन है ना वो येलो वाज डक, वो येलो को पकड़े हुआ है। तो जब वो ट्रांसपेरेंट हो गया तो बचा कौन, येलो, व्हाट इज येलो, Bottom. it is the bottom border, it is the bottom border, right? So if I do same thing here, I will now open up this thing and I close this one and I will do it with the balloon. I will do it with what, but I say before, you know, pseudo elements. We have seen pseudo elements and pseudo classes, right? Is a pseudo element or pseudo class? Before is what, it's a pseudo element, not class, so we have to use double, है ना। now it is coming up in this, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको छोटा करना पड़ेगा ना। so we say like 10, we say like 20 and we say like 10। और फिर इसका जो लेफ़्ट है पहले इसको बीच में लाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चला गया क्योंकि बॉर्डर जो आपका है ये ऐसे था ना बॉक्स, फिर हमने गोल किया इसको, लेकिन बॉक्स यहाँ से है ना तो इसलिए यहाँ पे आ गया। पहले हम इसको क्या करेंगे काम, इसका लेफ़्ट जो है LEFT लेफ़्ट जो इसका है वो हम करेंगे 50%, ताकि वो बीच में आ जाए। 50% आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बॉटम से हम इसको नीचे लाएंगे। बॉटम इसका रखेंगे हम, बॉटम BOTT, अच्छा इसको टर्मिनेटर भूल गए हैं इसलिए नहीं दिखा रहा। इसका बॉटम हम रखेंगे भाई साहब -20 पिक्सल, ताकि नीचे आ जाए, बॉटम से नीचे आ जाए। -20 पिक्सल कहाँ पे आ जाएगा आप देखो। इसने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया काम, बैलून B4 पे मैं कह रहा हूँ। लेफ़्ट 50% कर दो तो 50% लेफ़्ट और बॉटम -20 पिक्सल, मगर इसको पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी ना, तब जाके काम होगा, वरना ये हटेगा नहीं ना अपनी जगह से। पोजीशन एब्सोल्यूट, तो अब लग गया है नीचे, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है। यस सर। तो अब लग गया ना एज इफ की क्या है, बैलून का नॉट, ठीक है। अब इस चीज़ को हम उठाएंगे सारा, ये कॉपी करेंगे हम कमांड C और इसको डिस्पोज ऑफ पहले करेंगे प्रोजेक्ट को, और जो हमारा happy.css है उसमें हम ये बैलून के B4 के बाद लगा यहाँ पे लगाएंगे कमांड V, अपने इस पे लगाएंगे, ठीक है। और देखेंगे कैसा हो रहा है। पता नहीं क्या खुल गया, एनिमेशन खुल गई परसों की। हमें happy.html पे करना है ना, ये वाला, ओके। अब देखो बैलून का, अब बैलून थोड़ा सा हल्का राइट में आ गया, क्योंकि लेफ़्ट इसने किया ना ये, वो भी ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि बैलून थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि लेफ़्ट जब किया तो ये पूरा थोड़ा सा इधर हो गया, इसको थोड़ा सा हल्का और चलना पड़ेगा इधर, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रखो, क्योंकि इससे लगता है कि बैलून थोड़ा टिल्टेड है, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। अब क्या बाकी है, इसकी रस्सी अब है इसकी रस्सी बाकी, मचना है राज लागिन, रस्सी के बगैर थोड़ी बैलून चलेगा। बात समझ आ गई, हमने क्या किया, पहले ये समझ आ गया ये कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ।
ये समझ में आ गया? ये बैलून बिफोर क्या किया मैंने, बॉर्डर जी का सर। किस्सा, ठीक है? ये बॉर्डर का किस्सा समझ आ गया कि नहीं आ गया समझ? हाँ जी। जी सर, समझा गया। ओके, अब क्या करना है इसका, अब इसकी रस्सी, रस्सी इसके अगर हम आफ्टर से करेंगे, बिफोर से किया हमने इसका ये, तो इसकी रस्सी हम कर सकते हैं ना आफ्टर से, किससे? ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ कोई, अगर आपको ये समझ आ गया। इसकी रस्सी कैसे बनाएंगे हम, आफ्टर से बनानी है, बैलून आफ्टर से बनाएंगे, बताएगा कोई? सूडो, सूडो एलिमेंट है ना, क्योंकि अब इसमें एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी का हिस्सा है ना बैलून का हिस्सा, तो बैलून चल रहा है तो वो भी चल रहा है, ठीक है? पहले कंटेंट क्या रखेंगे, एम्प्टी, समझाया ना अभी मैंने, लेकिन इसकी विड्थ थोड़ी देंगे हम, क्योंकि ये रस्सी बनानी है ना। 4 पिक्सल मैं दूंगा विड्थ, और हाइट और देखना पड़ेगा कितना है, कि लगेगा कि नहीं लगेगा। फिलहाल मैं दूंगा 400 पिक्सल का, फिर देखते हैं कितनी हाइट है ये, ठीक है? ओके, और बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ, बैकग्राउंड कलर, कलर क्यों था उस येलो से, ब्लैक। ब्लैक ही चाची अंधकार भी पसंद है, चलो ब्लैक, ओके। और बोलो पोजीशन पहले इसकी होनी चाहिए एब्सोल्यूट, वरना ये अपनी जगह से हटेगा नहीं, है ना? ये कहाँ पे आ जाएगा, इसको लेफ्ट करेंगे 50 पर बताइए ना, ये ना हुई बैलोनस का ये ना बैलोनस खोबरी साइड हुई आवा ये ओके, ये ना बैलोनस लेफ्ट साइड यम साइड ये ना, ये 400 पिक्सल गो वारिया ज़्यादा, ये अख यमिस तल कन ना ये मज बाग अन राज मज बाग बे Yes, निश, इसलिए गोटी गोमिस लेफ्ट करूँ कूदा 50%, ना हमिस करो ट्रायंगल को जैसे किया था, लेफ्ट Yes, को sir. 50% वाती 50% वाती मज बाग तकरीबन वात ना, अच्छा आ गया ना बीच में थोड़ा सा, बीच पकना आखिर सा, तो और करना है ये जो ऊपर से है वो नीचे करना है, ताकि वो उस नॉट के पास पहुँचे, है ना? 400 पिक्सल को वारिया ज़्यादा, फिलहाल करो 350 पिक्सल 350 पिक्सल पता वो, अब देखो कितना होता है पहले, 350 ज़्यादा कैसा है, हाइट इसकी फ़िलहाल हम 200 पिक्सल रखेंगे, फिर करेंगे ये विड्थ 4 पिक्सल ठीक, विड्थ 4 पिक्सल की ठीक है ना, 300 पिक्सल का हम रखेंगे उसका, शायद 4 आ चुका है ना ऐसे, ठीक है। अब इसको नीचे लाना है और थोड़ा सा हल्का खिसकाना है साइड में, यानी कि लेफ़्ट इसको 51% अगर कर देंगे, 52%, 53%, मान ही नहीं रहा कुछ, चल रहा है 54% करो, ओके लेफ्ट 54%। अब इसका बॉटम कहाँ करेंगे बॉटम, लेकिन वो नीचे से लेगा है ना, हम इसको उसका कितना बॉटम रखा था हमने, -20 पिक्सल है, ये कहाँ पे आ जाएगा, -40 पिक्सल अगर रखेंगे इसका बॉटम, ये तो ऊपर ही चला गया, ये तो माइनस में कर रखा है ना मैंने इसको, ताकि ये नीचे जाएगी, ऊपर क्यों गया, एक मिनट, बॉटम से ये होना चाहिए दूरी पर है ना, ये ऊपर ग्रो होगा कि नीचे ग्रो होगा, ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड, इसको अगर 100 पिक्सल हम कहेंगे बॉटम, व्हाट विल हैपन, नाउ इट्स गोइंग अप, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था माइनस करो इसको, -100%, ताकि नीचे जाएगा, और करना पड़ेगा -200 पिक्सल्स, और करना पड़ेगा, और 200, उसका कितना था 20 था ना उसका, तो उसको 220 कर देंगे, -220 पिक्सल्स, अब आ रहा है,
अब थोड़ा सा इसको और खिसकाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे लेफ़्ट 55% करेंगे ताकि वो इसके बीच में आ जाए। ठीक हो गया। देखते हैं क्या होता है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा मुझे बताएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये लग रहा है रस्सी आ गई इसके साथ, अब 3 के साथ लग गया और 3 चढ़ गया ऊपर, मगर ये 3 अब फास्ट चढ़ गया है ना। ये रस्सी के पीछे पीछे चलना चाहिए ना कि आगे आगे, है ना। तो 3 का हमें थोड़ा सा वेट ही करवाना पड़ेगा। इसको 9 सेकंड ही रखो, इसको 9 सेकंड ही रखो। ठीक है। बाद में इसको करेंगे हम ताकि ये पहले ही ना जाए, बैलून के साथ ना जाए, पहले ही लग गया। अब 3 जा रहा है ऊपर, ठीक से जा रहा है अभी। अब थोड़ा सा ओवरलैप हो गया 4, वो देख लेना। अब हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जो 3 है, 3 के ऊपर एक लिड ऊपर से उठना चाहिए ऐसे। ठीक है। वो वाली चीज़ करेंगे हम बाद में, बाकी चीज़ आप खुद करोगे। लेकिन पहले मुझे आप दिखाओ, आप हो कहाँ पे? आप सो तो नहीं रहे हो? आर यू गाइज गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? Stop presenting, look at me, let me see if you are sleeping or not. Yasir, if you have missed the lectures, maybe you are not understanding properly. लेकिन बाकी को समझ आ रहा है? थोड़ा सा परसेंट थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया कुछ? I would really like to make you understand. ऐसी बात नहीं है। Which is so taper क्या हुआ? I have energy, lot of energy. So you can tell me if anybody is having confusions or anything or anywhere, I can explain. No, not an issue. Teachers? रासिब आपको समझ आ रहा है? इफला? Yes. मैं चाहता हूँ 3 के ऊपर ऐसे ऐसे उठे। या असल में मैंने एक कहीं पे देखा था, बाय द वे ये किसी ने पहले ही किया हुआ था, मैंने कहीं पे देखा था ये ना, ये हैप्पी न्यू ईयर का कोडिंग में। लेकिन हम खुद फिर सोचा मैंने कि इसको करेंगे, इसको ये मुझे जहन में था ये ऑलरेडी, क्योंकि हम ये उन दिनों याद है वो वी करते थे, विजुअल बेसिक्स वगैरह। योस तिमरी दोनों में कहता हूँ मुझे याद क्या। देन हमने वी में ये किया था एक बार, अब पता नहीं आपको याद है खबर। तो ऐसा करूँगी तो आपके बाद जो बैच था सहेल, शायद उन्होंने किया था, उनको मैंने करवाया था ये इन विजुअल बेसिक्स में, इसलिए मुझे तब से याद है, दिमाग में है मुझे। तो इस वक्त ये आइडिया आ गया है न्यू ईयर के ऊपर एनिमेशंस का। हाँ जी। अब हम चाहते क्या है, अगर किसी को समझ नहीं आता बेटा वो मुझे बताएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिकैप द थिंग्स एंड आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि समझ आए, अभी हम सीख ही रहे हैं। जो परसों की एनिमेशन है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ आपको करना है, स्टार्स आपको खुद ऐड करने हैं। ठीक है। जब 2023 से 2024 जब ये 3 उड़ेगा, 4 आ गया और अब यहाँ से ये थोड़ा सा आना चाहिए, बाद में आ रहा है थोड़ा सा, ये आना चाहिए और यहाँ हर जगह पे स्टार्स आने चाहिए। ठीक है। वो आपका काम है, पिक्चर्स डालो या आप कुछ एनिमेशन करो, वो आपकी मर्ज़ी है आप क्या करोगे, बट यू हैव टू डू दैट, बट डू दैट। मैं अब चाह रहा था कि 3 के ऊपर एक दक्कन उठे और वो चले। ठीक है। लेकिन आई थिंक इट्स टू मच ऑफ टाइम, आई थिंक दिस इज़ एनफ, वी कैन डू दैट लेटर। अभी हम क्या करेंगे काम, वी विल कम टुमारो एंड इफ़ टाइम परमिट्स वी विल डू दैट। दिस 3 का जो बता रहा था ये वो चीज़ करेंगे हम। देन वी विल डू फ्लेक्स बॉक्स का, हम थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे फ्लेक्स बॉक्स की। ठीक है। वी विल ट्राई टू मेक फ्यू थिंग्स इन फ्लेक्स बॉक्स, मे बी some picture website or something portfolio kind of thing। अभी हम जावास्क्रिप्ट बगैर कर नहीं पाएंगे, जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक अच्छा सा प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो जब जावास्क्रिप्ट हो जाएगा देन वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अभी हम लेकिन फ्लेक्सबॉक्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम ग्रिड पे आ जाएंगे। देन मे बी इसका मेन प्रोजेक्ट हम करेंगे, हम मानो नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाएंगे। ठीक है। आई लाइक दैट, वो हम कर सकते हैं। ठीक है ना। सो दिस वीक इट्स गोना बी फन, लेकिन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और उस तब बात बनेगी। जब तक आप खुद, एक बात याद रखनी चाहिए
और वो ग्रुप अपने वो प्लेलिस्ट किया हुआ है, वो जो प्लेलिस्ट इस वीडियोस का होता है ना, प्लेलिस्ट जो मैंने सेंड किया था, यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि उसमें मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता हूँ। उसके ऊपर जो है ना छोटे छोटे हल्के 2-2 मिनट्स के, 1-1 मिनट के वीडियो में तकरीबन मुझे फ्री टाइम आता है तो आई ट्राई टू डू समथिंग, आई डोंट वेस्ट टाइम यू नो इन फ्री टाइम एंड ऑल। मैं बैठा हूँगा, लैपटॉप साइड में पकड़ूंगा, कुछ ना कुछ बना के मैं उस पर चढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड इट्स फॉर यू ना, इट्स नॉट फॉर मी। सो यू अगर आप उसको देखोगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या आएगा मुझे वो चढ़ाने का, मेहनत करने का वो। सो मर्न स्टैक में वो चीज़ें मैं आपको डालता रहता हूँ, उससे क्या होगा, आपका आइडिया बनता रहेगा। तो कभी जावास्क्रिप्ट की बात चलती है, कभी जैसे कल मैंने किया था कि अगर आप 2 महीने आपने पढ़े तो 2 महीने में आप ग्रोथ नहीं दिख रही है, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था। वो छोटे 2-2 मिनट की वीडियो होते हैं, वो देखनी चाहिए, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो रिकैप में भी लगते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स भर के होता है, याद रखना। जो वो 2 मिनट की वीडियो है उसमें पूरा कंसेप्ट भर के है। सो डू वॉच दम। हर एक वो सब्सक्राइब करेगा, अपने चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो पहले। मैंने आपको कहा ना कि आई हैव नॉट मोनेटाइज्ड दैट चैनल, इट्स नॉट फॉर द मनी, ओके, इट्स फॉर यू पीपल। तो इसलिए अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे उसको तो फ़ायदा क्या आएगा। सो इसलिए डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। जब आपने वो बनाई, हाँ जब आपने बनाई मैंने शायद तभी ज्वाइन की थी। हाँ, यस यस, आई नो दैट। और लेकिन उसमें वो लाइक वगैरह होते हैं ना वो, ताकि वो आपका जो जब भी कोई वीडियो चढ़ेगा वो आपको नोटिफिकेशन आती है कि भाई साहब वीडियो चढ़ गया। सो यू शुड डू दैट, ओके, सो दैट कि उससे वीडियो चढ़ेगा, बिकॉज इट्स फॉर यू। क्योंकि इससे रीइंफोर्स कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि अभी हमें जावास्क्रिप्ट पढ़नी बाकी है, लेकिन मैं उसमें जावास्क्रिप्ट की चीज़ें डाल रहा हूँ। जब उसको आप पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में बैठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सूरा याद करवाना है बच्चे को, मैं क्या करता हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे या किसी पे यूट्यूब पे लगाया सूरा, शाम को रखा टेबल पे बेड के साइड में, बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सूरा रखता हूँ यहाँ पे, रखा ना सूरा, इस पे फ़ोन पे लगाया, रखा बेड के साइड में फ़ोन चला ज़ित्र दो किसी जीती और बैबल करा सु चीज़, डू यू अंडरस्टैंड। और उनको याद होता है वो चीज़, उनको पता भी नहीं होती हमने याद किया। दिस इज़ अ सिंपल टेक्निक हाउ वी लर्न। सो वो जो मैं चीज़ें आपको भेज रहा हूँ वो अर्ली भेज रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वो आपके दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर शॉर्ट वीडियोज़ बट दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। जस्ट 2 सेकंड के हैं, 1 सेकंड का, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड नहीं, सॉरी, नॉट एनिमेशन काइंड ऑफ 2 seconds. It is about 2 minutes or 1 minute, sometimes 3 minutes, like that, not more than 2.5 minutes maybe. So do watch them. तो कल से हम आएंगे, इसका कंप्लीट करेंगे ये, और उसके बाद हम वी विल डू द फ्लैक्स बॉक्स प्रैक्टिस एंड विल टेक अप द ग्रिड, ठीक है। ग्रिड किया हमने, फिर हम कुछ यूज़ केसेस और करेंगे, ठीक है ना। अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हम पहले यूज़ केसेस पे काम करेंगे, सो दैट यू विल हैव सम काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग द वेबसाइट्स, ठीक है जी। एंड वन लास्ट थिंग, if you're not getting anything, it's not about teaching and going forward and all that. I really mean to teach. So अगर समझ नहीं आता आप बोलें, ज़रूर बोलें, ठीक है। और रासिबा ने एक चीज़ कही थी मुझे, मैं वो भूल गया, फिर वो मैंने देखी नहीं। आपने की वो सॉल्व? रासिब आर यू देयर? No, sir. हाँ, आप मुझे कॉल करनी चाहिए थी, आप मुझे कल कॉल करना, ठीक है, अराउंड 11, अगर आप फ्री होंगे अराउंड 11 मुझे कॉल करना, फिर मैं वो देखूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। Okay. ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।